Good morning, children. This is Vaibhav Kulkarni, TGT Maths, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Usmanabad, Taluka Turzapur. Actually, you might have seen so far so many videos I have prepared on class 9th standard Maths, class 10th standard Maths. My target is to finish off this 9th standard Maths as well as 10th standard Maths for the students. And along with that, I have also prepared some videos called as Basic Maths for All, in which so far I have almost completed 20 videos and I will be taking up to 40 videos. So the content of the videos is to help the students who are having the problems in their basics. If the students see those basics and they try to do the problems of 9th and 10th standard, I feel that they will feel 9th and standard Maths very easy, because as an experienced teacher from last 26 years and plus some 3 years outside Navodaya, I have come to know some of the difficulties that the student face when they come in 9th and 10th standard. So with that intention, I have prepared the videos for Basic Maths also. Now this Basic Maths video can be seen even by 6th standard students, 7th standard students, 8th standard students, 9th standard students and 10th standard students. My channel name, as you all know, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. This is my channel name. The purpose of making this channel is to give standard coaching to the students who are suffering a lot because of this corona pandemics. Students are finding it very difficult to get the teachers. Most of the colleges are closed, most of the schools are closed, and in that context, students should be able to do maths. With that noble intention, this channel has been started. So I hope you might have already started seeing my channel. I want that you should subscribe it, share it, and even you can share your comments so that we can have an interactive class through mobile and through my internet, through my YouTube channel, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. And again, one good news that I am going to give you all, dear children, is I am also shortly starting this on my Facebook also. So shortly you will be seeing me on the Facebook also. You need to search for my page and then you click on my page and then you will get all the updates on the Facebook also. So dear children, try to understand the noble intention and share with as many people as you can. And you are free to share your views in the comment box. Basic Maths for All, Day 25. प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल का आज आखिरी हिस्सा हम सॉल्व कर रहे हैं. तो उस आखिरी हिस्से में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हमने देखा था कल हमने देखा था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड देखा था. अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर भी देखा था, और इक्वल एंगल्स एट द सेंटर है तो कॉर्ड्स की लंबाई सेम होगी, ये भी देखा था. अगर कॉर्ड्स की लंबाई सेम है तो सेंटर से उनकी दूरी सेम होगी, ये भी हमने देखा था. और सेंटर से अगर दूरी सेम है तो कॉर्ड्स की लंबाई इक्वल होगी. वाइस वर्सा स्टेटमेंट्स हमने देखे थे. अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज लास्ट फेज में हम एंटर कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ अ सर्कल का. तो बेसिक मैथ्स फॉर ऑल डे 25 के अंदर हम आपको अगली प्रॉपर्टी की तरफ ले चल रहे हैं. कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. सर कल आपने बताया था हमको कि कॉर्ड्स की लंबाई सेम होगी तो सेंटर का एंगल सेम होता है. तो क्या अगर आर्क की लंबाई सेम होगी तो क्या एंगल सेम होगा? यस. मैं उदाहरण यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ. देखिए यहाँ पर एक आर्क है CD, एक आर्क है AB और एक आर्क है EF. ये तीनों इक्वल है. CD की लंबाई, AB की लंबाई और EF की लंबाई सेम है. तो क्या इनके द्वारा बनाया गया सेंटर में एंगल जो भी होगा वो सब इक्वल होगा, यानी यह एंगल और यह एंगल इक्वल होगा. मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा. एग्जाम्पल मैंने आपको बताया. तो यानी कॉर्ड्स की लंबाई सेम रही तो
तो सेंटर का एंगल भी सेम रहेगा। सर कॉर्ड्स की लंबाई सेम नहीं रही तो एंगल सेम नहीं होगा, सिंपल सी बात है। सो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर सेंटेंस तो बड़ा भारी लग रहा है, वजनदार लग रहा है। चिंता मत करो, भले ही सेंटेंस वजनदार हो, समझना आसान है और हम आपको बिल्कुल सरल सिंपल भाषा में समझा देते हैं। देखिए क्या सिंपल भाषा है, एक सर्कल मेरे सामने उन्होंने दिया है और एक आर्क मेरे सामने दे रखा है। एक सर्कल मेरे सामने दे रखा है और एक आर्क मेरे सामने उन्होंने दे रखा है। अब इस आर्क द्वारा सेंटर के अंदर एक एंगल बनाया जा रहा है और उसका नाम है एंगल AOB। इस आर्क द्वारा सेंटर में एक एंगल बनाया जा रहा है, उसका नाम है AOB। यही आर्क सर्कमफ्रेंस के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है, आप देखिए P है, Q है, R है। तो इसी आर्क को लेकर मान लीजिए इसको अगर मैं जोड़ दूं, इसको P और ये, या फिर इधर से ले लेते हैं, ये अगर दिखाई आपको नहीं दे रहा है स्पष्ट तो एक काम हम करते हैं, यहाँ ले लेते हैं इसको, ये अधिक स्पष्ट होगा। तो ये ऐसे अगर मैं ले लेता हूँ तो ये होगा सेंटर में बनाया हुआ एंगल है AOB, सर्कमफ्रेंस में बनाया हुआ एंगल है AQB। तो मान लीजिए ये अगर 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा हमेशा। कितना होगा? ये अगर 60 है तो ये 30 होगा। तो यहां से लेकर यहां तक सारे पॉइंट्स के ऊपर वही हाल होगा। मान लीजिए सर ये R है, यहां पर लेंगे तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। इसके द्वारा अगर सेंटर में है तो ये भी होगा 30 डिग्री। सर ये वाला लेंगे तो ये भी होगा 30 डिग्री। यहां पर ये कितना हो रहा है? 30 डिग्री हो रहा है। तो यानी क्या है, एक आर्क द्वारा सेंटर का जो एंगल होता है, सर्कमफ्रेंस का एंगल सेंटर का एंगल का हाफ होता है। या उल्टा भी कह सकते हैं, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 45 है तो ये 90 होगा। यही तो इसका मतलब होता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। किसका डबल है? डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब मेरे ख्याल से स्पष्ट होगा। सर वाक्य बड़े कठिन और बड़े वजनदार लग रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। तो वैसा अगर आपको लग रहा है तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने एक आर्क बनाया और उस आर्क द्वारा सेंटर में अगर कुछ एंगल बना दिया गया तो सर्कमफ्रेंस का एंगल हमेशा इसका आधा होगा, ये इसका आधा, इसका ये जो हो इसका आधा होगा। यानी जो भी एंगल यहाँ पर 80 होगा तो ये 40 होगा, ये 40 होगा, ये 40 होगा। सर ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा? ये पूरा इधर तक चलेगा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एंगल subtended by an arc at the center is double than the angle subtended by it at any point on the circumference of a circle। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये है। अब एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट का मतलब क्या होता है? सेम सेगमेंट का मतलब होता है बच्चों, एक सर्कल मैंने यहाँ बनाया, आपके सामने एक सर्कल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और इस सर्कल के अंदर मैंने एक सेगमेंट बनाया और वो सेगमेंट है AB मान लीजिए। तो AB द्वारा आप देखिए यहाँ पर एक मेजर सेगमेंट बनता है, एक माइनर सेगमेंट बनता है। तो अगर इस AB को लेकर मैं कितने भी पॉइंट ले लूँ, जैसे ये ले लूँ APB, यहाँ पर मैंने लिया Q, ये ले लूँ मैं AQB, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया R, ये ले लूँ मैं ARB। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे जो मेजर सेगमेंट के अंदर एंगल्स आएंगे इक्वल होंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो इस तरह से सारे एंगल यहाँ से और एक भी ले लूँ, ये भी x होगा। दिस ऑल्सो विल बी x। सर ये माइनर सेगमेंट के अंदर लेंगे तो भी सेम सेगमेंट का मतलब होता है या तो सारे एंगल्स मेजर सेगमेंट में होने चाहिए या तो सारे एंगल्स माइनर सेगमेंट में होने चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल सर यहां से आपने पॉइंट सारे इस तरफ ही क्यों लिए मेजर आर्क के ऊपर, आपने सारे पॉइंट्स मेजर आर्क के ऊपर ही क्यों लिए, माइनर आर्क के ऊपर भी आप ले सकते हो। माइनर आर्क के ऊपर अगर आप ले लोगे तो मान लीजिए इसको आपने कहा कि यस तक हो गया हमारा, इसको अगर आपने टी ले लिया तो ये ए टी बी, फिर दूसरा एक एंगल यहाँ पर आप ले लीजिए, मान लीजिए एक्स आपने ले लिया तो ए एक्स बी। तो जितने भी एंगल आप बनाओगे माइनर आर्क के अंदर, सारे माइनर आर्क के एंगल इक्वल होंगे, सारे मेजर आर्क के एंगल इक्वल होंगे। मान लीजिए ये 40 डिग्री है, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। दैट इज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अब सर एक एंगल यहां का और एक एंगल यहां का लेंगे तो दैट इज अल्टरनेट सेगमेंट उसको बोलते हैं। वन इन द मेजर सेगमेंट, वन इन द माइनर सेगमेंट लेंगे तो इक्वल होगा क्या, ना, नॉट एट ऑल इक्वल, इट शुड बी इन द सेम सेगमेंट। सपोज इफ एट ऑल यू टेक द सेम सेगमेंट, तो यहाँ 45 45 45 45, यहाँ मान लीजिए 90 है 90 है 90 है तो 90, जो भी होगा वो आपका सेम होगा। फिर यहाँ y, यहाँ y, यहाँ y, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एंगल होगा वो सेम होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल होगा वो सेम होगा। सो दैट इज व्हाट इज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। नाउ द लास्ट इज एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी का मतलब होता है हाफ, आधे सर्कल के अंदर जो भी एंगल्स बनेंगे वो सारे राइट एंगल होंगे। सेमी फाइनल आपने सुना होगा, तो सेमी का मतलब होता है आधा फाइनल। तो ये आधा सर्कल के अंदर, जैसे ये दिस इज अ सर्कल, ये सर्कल आपके सामने मैंने यहाँ पर बना दिया, ये सर्कल आपके सामने मैंने यहाँ पर बना दिया, और इस सर्कल के ऊपर ये डायमीटर मैंने बना दिया। तो वंस आई मेक अ डायमीटर दैट मीन्स द सर्कल इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। सर्कल के कितने दो हिस्से हो गए, दो बराबर हिस्से हो गए। तो जैसे ही सर्कल के ऊपर दो बराबर हिस्से हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। तो मान लीजिए पॉइंट आपने यहाँ पर लिया तो ये 90 डिग्री होगा, ए पी बी 90 डिग्री ही होगा, ए क्यू बी 90 डिग्री ही होगा। सर मैं यहाँ पर भी पॉइंट लेता हूँ तो भी 90 डिग्री होगा, सर नीचे पॉइंट लेता हूँ तो भी 90 डिग्री होगा, तो भी 90 डिग्री होगा। यानी आधे सर्कल के अंदर जो भी एंगल्स बनेंगे वो सारे राइट एंगल होंगे। दैट इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। नेक्स्ट इज टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। यानी एक सर्कल है यहाँ पर विद द सेंटर O, आपके सामने मैंने सर्कल एक डाला है और एक एक्सटर्नल पॉइंट मैंने मान लीजिए P बनाया है। तो इस सर्कल को अगर मैंने टेंजेंट बनाया तो ये टेंजेंट्स की लंबाई जो होगी वो हमेशा सेम होगी, यानी PA की लंबाई PB के बराबर होगी। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PA विल बी ऑलवेज इक्वल टू द टेंजेंट PB। PA की लंबाई PB के बराबर होगी। सर कितने टेंजेंट बन सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल को, केवल दो बन सकते हैं। सर मैंने अगर पॉइंट यहाँ ले लिया तो यहाँ से दो टेंजेंट बनेंगे। सर मैंने पॉइंट यहाँ लिया तो यहाँ से दो टेंजेंट बनेंगे, यहाँ पॉइंट लिया तो दो टेंजेंट बनेंगे, यहाँ पॉइंट लिया तो दो टेंजेंट बनेंगे, मगर वो दोनों टेंजेंट्स का लेंथ जो होगा वो सेम होगा। सो द टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो बच्चों ये है कंप्लीट पैकेज ऑफ सर्कल्स। आप इस कंप्लीट पैकेज का देखिए, कहीं पर भी मैं अंदर एंट्री नहीं मारा है मैंने, मगर सर्कल टॉपिक जहाँ से शुरुआत होती है आपके क्लास में, वहाँ से लेकर जहाँ 10th तक आता है, 11th 12th को अभी मैंने टच नहीं किया यहाँ पर, मगर 10th तक का पूरा बेसिक यहाँ पर कवर हो रहा है। तो पहला मैंने आपको क्या बताया कि अगर आर्क्स की लंबाई सेम होती है तो सेंटर का एंगल भी सेम होता है। अगर आर्क्स की लंबाई सेम होती है तो सेंटर का एंगल सेम होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ का एंगल हमेशा इसका दुगना होता है, जो भी यहाँ पर होगा इसका यहाँ डबल होगा, यहाँ 50 होगा तो यहाँ 100 होगा, यहाँ 100 होगा तो यहाँ हाफ होगा। तो ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि सेम सेगमेंट के अंदर एंगल्स बनते हैं, तो सेम सेगमेंट्स के अंदर सारे एंगल्स, या तो सारे एंगल्स मेजर सेगमेंट में होने चाहिए या सारे एंगल्स माइनर सेगमेंट में होने चाहिए। तो सारे एंगल्स अगर मेजर सेगमेंट में है तो भी इक्वल होंगे, सारे एंगल्स अगर माइनर सेगमेंट में हैं
तो भी इक्वल होंगे, मगर एक एंगल माइनर और एक मेजर में नहीं चलता है। नेक्स्ट आता है एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी आधे सर्कल के अंदर जितने भी एंगल्स होंगे सारे राइट एंगल होंगे। ये भी सही है, आप मेजर करके भी, अगर आपकी इच्छा है तो आप क्या कर सकते हो, एक सर्कल कट कर लो, वहाँ पर आप पॉइंट्स मार्क करके प्रोट्रैक्टर की सहायता से आप इसको नाप कर भी चेक कर सकते हो, यह आपका प्रैक्टिकल एक्टिविटी हो सकता है। और लास्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी एक सर्कल अगर मैं बनाऊं, बाहर एक पॉइंट रखूं और वहां से अगर मैंने टेंजेंट बनाना शुरू कर दिया तो उनकी लंबाई क्या होगी, ऑलवेज इक्वल होगी। सो टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। सो दैट्स ऑल माय डियर चिल्ड्रन अबाउट सर्कल्स। कल फिर हम क्या करेंगे, कोई एक नया टॉपिक ले आएंगे और उसका बेसिक्स आपको हम सारा बताएंगे।